physiotherapy is from pediatric to geriatric. ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो फिजियोथेरेपी में एकदम कॉमन प्रॉब्लम्स है जो फिजियोथेरेपी से ही सॉल्व हो सकते हैं? 70-80% केसेस जो होते हैं, जैसे नेक पेन है, लो बैक पेन है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, तो 70-80% जो केसेस हैं वो यही होते हैं। कोच इंजरी होती है, जैसे क्रिकेट है या बैडमिंटन खेल लिया, उससे इंजरी हुई तो फिजियोथेरेपी उसमें हेल्प करेगा, राइट? फिजियोथेरेपी हेल्प नहीं करेगा, फिजियोथेरेपी करना ही पड़ेगा। So how do you keep patients motivated throughout this? रिटर्निंग टू स्पोर्ट्स नीड्स फिजियोथेरेपी। नहीं की है फिजियोथेरेपी तो वापस वही पैर में वही जगह पे मोच आने के फुल चांसेस। Can we say that after doing physiotherapy, मतलब वो prevention है for medication और surgeries के लिए? सो मेरे क्लिनिक में ऑर्थोपेडिक केसेस भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल केसेस भी होते हैं, सर्जिकल केसेस भी होते हैं। आवर ह्यूमन बॉडी इज नॉट मीन फॉर staying in a single position for hours together. जैसे आपने बोला कि लॉन्ग टाइम तक बैठने के लिए अपनी बॉडी नहीं बनी हुई है, बट देन व्हाट अबाउट द पीपल जिनकी डेस्क जॉब्स है, वो क्या करेंगे? दे कैन नॉट मूव राइट एवरी नाउ एंड देन। ये हो ही सकता है, हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं उसमें। तो आपको कौन सी टाइप की एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत है? स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है या एंड्योरेंस बढ़ाने की जरूरत है? फिजियोथेरेपी कैसे सपोर्ट करता है अपनी जो पोस्ट सर्जरीज हो जाती है? अब बस ये सर्जरी के 15 दिन बाद तो आप एकदम अच्छा चलने लग जाओगे, तो कई बार ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं पेशेंट के। तो ये तीनों बात ध्यान रखनी पड़ती है। एक तो अपनी फिटनेस, दूसरे पोस्चर्स एंड टेक्निक्स। फिजिशियन एड्स डे टू लाइफ, बट अ फिजियोथेरेपिस्ट एड्स लाइफ टू डेज। Welcome to the Khabadi podcast. Today we have Dr. Rishikesh, the senior most physiotherapist with 27 years of experience. From fixing aches and pains into transforming their lives, he's too expert in his field. Get ready into fun-loving conversation as we dive into the world of physiotherapy. Hello sir, how are you? हेलो सिंका। Hello. What is physiotherapy and when should one consult one? Okay, physiotherapy is a branch of modern medical science. Scope of physiotherapy spans from pediatric to geriatric, I say. मतलब बचपन से लेके या कहो कि from a pregnant lady to geriatric, मतलब old age person. सो इन सभी की लाइफ में कुछ न कुछ ऐसी तकलीफें या डिसऑर्डर्स होते रहते हैं जिनमें फिजियोथेरेपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो जैसे आपने पूछा है कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली, तो फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीट्स अ पेशेंट mainly through therapeutic exercises. The mainstay of the physiotherapy treatment are exercises, and of course there are so many machines which help reduce pain and help the recovery make faster. There are so many modality, or you can say machines, that also help to recover patient faster. But I must say the mainstay of physiotherapy treatment are the therapeutic exercises. So this is a brief introduction of what physiotherapy is. How is physiotherapy different from chiropractic? मतलब massages है या care है, कैसे different है वो बाकी सब से? Okay. So physiotherapy, as I said, its scope is from pediatric to geriatric. Physiotherapy is much more than massage and chiropractic. Care. Yes. What chiropractor, as far as I understand, the chiropractor, they correct the joint derangements mainly, and it helps in mostly in acute condition. Okay. So if one has derangement of joint or catch in joint and the movements are painful, he or she cannot assume normal postures, then sometimes in such acute condition chiropractor can help. And massage is mainly for the muscles and soft tissues. Okay. So all the musculoskeletal conditions cannot be treated with massage, and sometimes massage is also contraindicated. Okay. In certain conditions you should not do massage. Okay. Because it may aggravate the pain, inflammation, swelling. So but physiotherapy, how it differ from chiropractor and massage. So physiotherapist systematically assess the patient. He assesses the patient. He examines his movement, his muscle strength, how patient moves, what are the deviations from the normal postures. And there are so many factors a physiotherapy sees in patient. And then he decides how to proceed, and then he decides the line of treatment. So how exactly the patient will benefit by
choosing which modality and which exercises for his ailment, disability or disorder. So it is much more than massage and chiropractic. So physiotherapy has a very large span and various treatment techniques also, I say. Okay. So it differs Much in more. this way. Can we say that after doing physiotherapy, मतलब वो prevention है for medication or surgeries के लिए? It's not prevention. Definitely in certain conditions, it helps prevent the deterioration of the condition. In certain condition, it also prevent a patient's condition getting worsened and which may lead him or her to a surgery. So in certain cases or up to certain limit, it works as prevention. But in many cases or many a disorder, physiotherapy is the only treatment for certain condition. So you just can't label physiotherapy as a preventive therapy. Okay. There are so many disorder, I say. So physiotherapy is the mainstay of the treatment part. If I give example, a condition which is called torticollis. Okay. In such sometimes in newborn babies it is being seen See. that the muscle of the neck is by birth congenitally it is short. Okay. So somehow there is no pinpoint reason has been found for that, but sometimes it's there. So if timely physiotherapy is administered, it is 100% curable with physiotherapy. If it goes unnoticed and time has passed for say several months or a year or two, and then what happens that shortened muscle get permanently contracted, contracture develop हो जाता है, and then that patient needs surgery. Without surgery that cannot be released. And after that surgery also, to get maximum benefit of the surgery, again the physiotherapy is the necessary. You can't avoid physiotherapy. So in such conditions, if patient comes to the physiotherapist on time and problem is diagnosed, then the thing gets cured with physiotherapy only. But then I just have a question. Like you said that they should come on time, right? Yes. अभी लोगों को ये पता ही नहीं है. I got to know अभी through Yes. this, right? Okay. So I want people to know कि वो कैसे पता होगा कि इस टाइम पे आ जाना है फिजियोथेरेपिस्ट के पास. आपकी बात सही है कि जैसे आप बोल रहे हैं मुझे भी अभी पता चला कि तो देर आर सो मेनी कंडीशंस इन विच फिजियोथेरेपिस्ट हैज अ ग्रेट रोल. बट ये अवेयरनेस की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ. तो जैसे वो उसमें किसी पेशेंट का दोष नहीं है, उनको भी जानकारी नहीं होती है, इसलिए ये डॉक्टर को दिखाया वो डॉक्टर को दिखाया. ऐसा होता है, हर एक के साथ होता है. अगर मैं लेमन होता तो मेरे साथ भी ये होता. मैं कहूंगा कि ये अवेयरनेस की थोड़ी प्रॉब्लम है. साथ में आई एम पॉजिटिव दैट की अवेयरनेस बढ़ी भी है. तो ऐसे सब जब मैं प्रैक्टिस शुरू की तो यहाँ पे कोई फिजियोथेरेपी था ही नहीं. Okay. I was the only one to practice here. So at that time, I used to meet consultants, physicians, and orthopedic surgeons and a general surgeon, and asking them that these are the conditions in which physiotherapy is quite need. helpful. And not only helpful, it is the main part of treatment. So this was the way I was creating awareness in the medical fraternity also and the society also. So nowadays, in certain conditions, the patient have come to know that इस कंडीशन में फिजियोथेरेपी ही का बहुत रोल है. तो आज पेशेंट डायरेक्टली फिजियोथेरेपिस्ट हमको कंसल्ट करते भी हैं. सो स्टिल देयर आर माइल्स टू गो, आई मस्ट से. जैसे कौन से प्रॉब्लम्स है जो फिजियोथेरेपी में एकदम कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो फिजियोथेरेपी से ही सॉल्व हो सकते हैं, जो डेली लाइफ में आप देखते हो ऐसा? बिल्कुल. सो इट्स अ गुड क्वेश्चन. आई मस्ट से कि आप जैसे बोल रहे हो डेली लाइफ में जो है वो देखने को मिलते हैं. ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स क्या है जिसमें फिजियोथेरेपी नीड का हाँ इट्स नेसेसरी एंड हैव इम्पोर्टेंट रोल. सो जैसे आज में मेरा क्लिनिक है, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ. तो ये मैं जनरल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस, अभी फिजियोथेरेपी में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आ गए हैं,
पर मेरी जैसे प्रैक्टिस है, आई मैं जनरल फिजियोथेरेपी प्रैक्टिशनर। सो मेरे क्लिनिक में ऑर्थोपेडिक केसेस भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल केसेस भी होते हैं, सर्जिकल केसेस भी होते हैं। लेकिन आप जैसे कॉमन प्रॉब्लम्स पूछ रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि मेरी आज जो भी प्रैक्टिस है उसके 70-80% केसेस जो होते हैं, जो आपने पूछा है, ऐसे कि जैसे नेक पेन है, लो बैक पेन है, नी पेन है, शोल्डर पेन है, तो ये 4-5 कंडीशन ऐसी है जो हमारी आज की जो हमारी ओपीडी है, हम जो दिन भर जितने पेशेंट, उसमें 70-80% जो केसेस हैं वो यही होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी फिटनेस कॉन्शियस हैं, या हमारे शरीर में कोई ऐसे पेन हो रहा है, या वी आर नॉट मूविंग नॉर्मली और रेंज ऑफ motions of joint are reduced, then we should get aware that there is something wrong and should consult physiotherapist first. होता क्या है कि ये जितने भी प्रॉब्लम मैंने आपको 4-5 बताया कि नेक पेन है, या बैक लो बैक पेन है, या शोल्डर पेन, नी पेन, ये डेवलप कैसे होते हैं, पहले वो हम थोड़ा ब्रीफली समझ लें। मेनली जो है हमारे गलत पोस्चर्स, वो अफेक्ट करते हैं हमें मेनली। दूसरा, our human body is not mean for staying in a single position for hours together. If you are sitting for 8 to 10 hours a day, our body is not mean for that. So we are abusing our yes. First of all, we must think about this. So अगर हम postures अच्छे रखें, हमारी जो daily activities होती हैं वो carry out हम कैसे करते हैं, जैसे we should know the right correct technique, जैसे lifting techniques है, how to get up from bed, how to move, how to lift weight. These are the techniques or common things which one should know to avoid such problems. Low back pain is the second most ache after the headache one have experienced. So headache is the most common ache one have experience in life. किसी न किसी को जिंदगी में एक आधी बार तो सर दर्द हुआ ही होगा। तो ऐसा ही सेकंड मोस्ट अगर एक है तो वो है लो बैक पेन। लगभग किसी न किसी को जिंदगी में कमर दर्द कभी ना कभी, भले वो सर्टेन शॉर्ट पीरियड के लिए हुआ, किसी किसी को जिंदगी भर कमर दर्द रहता है, ऐसे भी पेशेंट हम देखते हैं। ये सब जो है उसमें फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है। एक तो आपने पूछा कि ये क्या कॉमन प्रॉब्लम्स है, तो इसमें जो है मेनली क्या होता है कि हम गलत पोस्चर्स के कारण हमारे जो स्पाइन, हमारा एक्सियल स्केलेटन है, उस पे हम स्ट्रेस, एबनॉर्मल स्ट्रेस डालते रहते हैं, तो उसके जॉइंट्स के आसपास लिगामेंट्स, उसके ऊपर वर्क करने वाले मसल्स, ये सब अफेक्ट होते हैं। और अगर ये लंबे अरसे तक यही रहता है, देन दे डेवलप सर्टेन डिजेनरेटिव चेंजेस ऑल्सो। तो अगर हम एक्सरसाइजेस करते हैं प्रॉपर वे में, अगर फिजियोथेरेपिस्ट को आप कंसल्ट करेंगे तो वो आपको असेस करेगा, और आपको प्रॉपर असेसमेंट के बाद आपके लिए जो जरूरी होगा वो उस प्रकार से उस एक्सरसाइज बताएगा। देन ही विल मेक यू रिकवर टू द नॉर्मल मूवमेंट लेवल्स और नॉर्मल स्ट्रेंथ लेवल्स। उसके बाद आप जो है वो सारी ही नॉर्मल एक्टिविटी कर सकते हो। और दूसरा कि यू शुड फर्दर स्ट्रेंथन योर मसल्स टू बिकम अ मोर फिट पर्सन। तो आप ये जो है इनसे हमेशा के लिए ऐसी तकलीफों से आप छुटकारा पा सकते हैं। सो जैसे आपने बोला कि लॉन्ग टाइम तक बैठने के लिए अपनी बॉडी नहीं बनी हुई है, बट देन व्हाट अबाउट द पीपल जिनकी डेस्क जॉब्स है, वो क्या करेंगे? दे कैन नॉट मूव राइट एवरी नाउ एंड देन। ये एक, जैसे मैं बोलता हूँ, मॉडर्न डेज की ये एक ड्रॉबैक या बोल सकते हो कि लोगों को लगातार घंटों तक बैठ के काम करना पड़ता है। फिर भी मैं कहूँगा कि आप दिन के 6, 8, 10 घंटे अगर बैठ के काम करते हो, then also you will find a time, a few minutes I say, to get up from your chair, move around, do some stretches, and then again go back to work. It doesn't take time much more than few minutes. कुछ भी नहीं। अगर आप आज हम देखते हैं कि हमारा ज्यादातर काम जो है लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल पे हो रहा है, तो काफी सारे पेशेंट्स हम देखते हैं जिनका फोन चालू ही रहता है, मतलब ऐसे 5 मिनट नहीं जाती होगी जो उनका फोन नहीं बजता है। तो हम कई बार पेशेंट को बोलते हैं कि आप डेस्क जॉब कर रहे हो, आपकी फोन पे भी काम चल रहा है,
तो आप ऐसा क्यों नहीं करो कि आप जब फोन पे काम कर रहे होते हो तो आप फोन है तो टेक ए शॉर्ट वॉक एंड कर लो। हैव हाँ आप बात कर लीजिए. तो दीज आर स्मॉल चेंजेस वन शुड मेक टू अवॉइड द प्रॉब्लम सिटिंग. ये हो ही सकता है, हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम अवेयर नहीं होते हैं उस के लिए. तो थोड़ी सी हम अवेयरनेस डेवलप करेंगे. सो वन शुड नॉट, इवन हेल्दी पर्सन शुड नॉट sit at a stretch for more than 1 or 1.5 hours. One should get up, move around, again come back to your place and work, start your work. साइटिका भी एक पार्ट है फिजियोथेरेपी में, जब ये वो कर सकता है प्रिवेंट इस चीज को. बिल्कुल, फिजियोथेरेपी इज means treatment for the sciatica. What sciatica is the pain which occurs in the leg, lower limb. It may give rise to pain or numbness in your legs and tingling sensation. This is called sciatica. And the causative factor is in our spine. There are discs. That disc get bulged sometimes due to injury, or you may have lifted the weight, heavy weights with wrong techniques. Then disc can get injured, and that bulged disc compresses the nerve, which is called sciatic nerve. So that sciatic nerve gets involved and the pain starts. This condition is called sciatica. Commonly we know the sciatica, but what sciatica is exactly is like the pathology of the sciatica is this. So in this we treat patient with modalities, as I say, जो है वो pain relieve करने में help करती है. And mainly we make the patient exercise with therapeutic exercises. We relieve the nerve, sciatic nerve, with certain techniques, mobilization and manipulations. There are so many techniques. So we use those techniques to relieve the nerve from the pressure, and patient recovers quite fast, depending on their severity and the nature of the disorder. But definitely physiotherapy helps a lot with patient with sciatica. स्पोर्ट्स इंजरी होती है, जैसे क्रिकेट है या बैडमिंटन खेल लिया, उससे इंजरी हुई तो फिजियोथेरेपी उसमें हेल्प करेगा, राइट? फिजियोथेरेपी हेल्प नहीं करेगा, फिजियोथेरेपी करना ही पड़ेगा. करना ही पड़ेगा. सो क्या होता है कि जैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो दे आर मोर प्रोन टू इंजरी. दे मूव वेरी फास्ट, दे चेंजेस द direction of their movement abruptly, because sports need quick movements and the impact. If you imagine tennis player, so how he runs Very fast. across the court Yeah. and how he changes the direction. So sometimes what happens, he needs to turn very fast and he loses balance. So sometimes he may get ankle sprain or knee injury, or these are the acute injuries. So in this there are stage-wise management. In acute times, initial 2-3 days, and depending on the severity of injury, in earlier 2-3 days he may need a rest, and that after that again he may also need some medicines to relieve the pain and swelling also. Okay. But after that, returning to sports needs physiotherapy. For the pain management also, to gaining the strength and the mobility to the normal level, physiotherapy is the only solution. Okay. And after that, if the injury is so bad, the patient, after taking rest and the pain is relieved, the patient won't be able to return to sports. Sometimes he may not be able to walk normally also after the pain and swelling is gone. Patient has difficulty in walking. Naturally, he may not go back to sports immediately. So He needs in such physiotherapy. conditions, physiotherapy is utmost important to get back to sports, to recover. So what happens when a person gets injured, such acute injuries, our joint have certain receptors. We call them kinesthetic receptors and proprioceptive receptors. So वो जो होता है proprioception means आप जैसे मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाऊं, तो आप जब खड़े हैं, अगर आप खड़े रहेंगे तो आप आंख खुली रख के खड़े रहो और आंख बंद करके खड़े रहो. जब आप आंख बंद करके खड़े रहोगे तो आपको आसपास का एनवायरनमेंट जो है, आपका जो विजुअल फीडबैक है वो चला जाता है.
तो तब क्या होता है, आप जो बैलेंस कर रहे हो ना, वो आपके जॉइंट से ये जो रिसेप्टर्स आते हैं वो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को पहुंचाते हैं कि आप स्वे करोगे, कई बार आप आंख बंद करोगे तो थोड़ा स्वेइंग होने लगेगा, वो स्वे से रिसेप्टर्स सेंस कर लेते हैं और वो आपको ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, और ब्रेन अगेन जो है हमारे मसल्स को ऑर्डर करता है उस हिसाब से कि भाई इस दिशा में ये आप डोल रहे हो, तो ये एक मैकेनिज्म होता है। तो ये क्या होता है कि जब ऐसी स्प्रेन्स वगैरह होते हैं तो ये मैकेनिज्म जो है वो थोड़े डिसफंक्शनल हो जाते हैं। अगर स्पोर्ट्स पर्सन ये इस प्रकार फिजियोथेरेपी नहीं करेगा और उसको समझो कि वो पेन रेस्ट कर लिया, पेन ठीक हो गया, कम इंजरी है, तो ही मे गो टू स्पोर्ट्स ऑल्सो, बट क्या होता है कि वो जो प्रोप्राइसेप्टिव और काइनेस्थेटिक सेंसेस जो हैं वो अफेक्टेड रहती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर स्पोर्ट्स पर्सन ने फिजियोथेरेपी नहीं की तो रिकरेंसेस ऑफ द सेम स्प्रेन आर क्वाइट हायर। नहीं की है फिजियोथेरेपी तो वापस वही पैर में वही जगह पे मोच आने के फुल चांसेस। फुल चांसेस है। तो फिजियोथेरेपी इज दैट इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स इंजरी। ये मैंने आपको अक्यूट कंडीशन के लिए बताया, लेकिन कोई बंदा गिरता नहीं है या ऐसी इंजरी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि जो लोग खेलते हैं ना उनको, जैसे टेनिस ही मैं आपको बता दूं या बैडमिंटन ले लो, तो दे नीड मोर पावर टू स्मैश या कुछ भी, है ना। तो क्या होता है कि अगर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन के 1.5-2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सोचो कि उसने कितनी बार शॉट मारे होंगे, एंड दैट इज हाई वेलोसिटी एंड दैट नीड्स सो मच ऑफ पावर। सो ये जो मसल्स होते हैं रिपीटेडली इतने हाई पावर से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और शॉट मारते हैं, तो क्या होता है कि एक जो है ना, एक इंजरी है वो हाई इम्पैक्ट इंजरी है, और एक ही रिपीटेशन, जैसे मैं गिरा मुझे मोच आ गई तो इतना फोर्स था कि उसने मेरे लिगामेंट को डैमेज कर दिया, इंजर्ड कर दिया। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं वो अनदर टाइप ऑफ, दिस इज द रिपीटेड लो एम्पलीट्यूड हाई रिपीटेशन। सो अगर आपने रेजोनेंस सुना होगा ना, हम साइंस जब पढ़ते थे स्कूल में तो रेजोनेंस करके एक इफेक्ट आती थी। तो क्या होता है कि ब्रिज जो बना होता है ना, तो ब्रिज पे लिखते हैं कि भाई इससे हैवी व्हीकल पास होना मना है। तो क्या होता है, उस ब्रिज की एक कैपेसिटी होती है, उस लेवल से ज्यादा व्हीकल हैवी पास हुआ तो ब्रिज में गेट कोलैप्स्ड। आपने एक और भी सुना होगा कि वो ब्रिज से ना, जो ऐसे जो ब्रिज होते हैं उनमें ऐसा भी लिखा होता है कि जो आर्मी पर्सनल जो होते हैं ना उनको मार्च नहीं करनी होती। अगर मार्च करते करते जाते हैं ना तो उनको ब्रिज पे मार्च करना मना होता है। क्या होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट आता है, तो रेजोनेंस इफेक्ट अगर वो ब्रिज के थ्रेशोल्ड से बढ़ गया तो भले ही हैवी व्हीकल नहीं है, लेकिन आर्मी पर्सनल जो मार्च करते हैं ना उससे भी ब्रिज टूट सकता है। तो इसी प्रकार का हमारे लिगामेंट में है कि एक उसका एक इंजरी जो उसका एक रेजिस्ट करने का एक जो थ्रेशोल्ड होता है ना, वो सिंगल गो में भी अगर ज्यादा फोर्स हुआ तो इंजर हो सकता है, लेकिन रिपीटेड अगर उस पे हम स्मॉल एम्पलीट्यूड लोड रिपीटेडली डालते रहे जो उसके थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है, देन ऑल्सो वन कैन गेट इंजरी। इन दिस कंडीशंस देर आर स्टिल आई से कि लेस अवेयरनेस। सो इन ये जो कंडीशंस हैं उसमें फिजियोथेरेपी ही हेल्प करती है, क्योंकि उसमें पेशेंट्स की जो है मसल्स वगैरह को एक लेवल तक, उनके स्टेमिना को, उनके एंडोरेंस को भी बढ़ाना पड़ता है, तब जाके ये जो लो एम्पलीट्यूड हाई रिपीटेशन की वजह से जो इंजरी होती है वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और दिस इज क्वाइट कॉमन, दिस टाइप ऑफ इंजरीज आर क्वाइट कॉमन इन स्पोर्ट्स पर्सन। जैसे आपने सुना होगा टेनिस एल्बो है, तो ये जो इंजरीज है वो ऐसी है जो लो एम्पलीट्यूड हाई रिपीटेशन मोड से होती है। सो जैसे आपने बोला एथलीट्स में ये सारी चीजें कॉमन होती है, तो जनरल लोग कोई प्रिवेंशन के लिए कोई चीजें करनी चाहिए, मतलब डू यू वांट टू गिव एनी एडवाइस टू पीपल फॉर स्पोर्ट्स पर्सन और जनरल के स्पोर्ट्स पर्सन के साथ? तो दे नो आई गेस अवेयरनेस है इतनी कि वो लोग अब थोड़ी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बट देन ऐसा कॉमन मैन के लिए ये अवेयरनेस अभी तक नहीं है। बिल्कुल। सो हाउ डू यू वांट टू गाइड पीपल? देखो ऐसा है कि एक्सरसाइज तो सभी को करना चाहिए, फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सबको डेली रूटीन लाइफ में दे मस्ट स्पेयर सम टाइम, आई मस्ट से एटलीस्ट 20 minutes to 1 or 1.5 hour one should spare time for exercising.
अब जैसे क्या होता है कि हम खाना खाते हैं ना, हम खाना तो सभी लोग खाते ही हैं और ध्यान भी रखते हैं बहुत सारा कि ये खाना है नहीं खाना है, तो हमें पता है कि वेल बैलेंस डाइट होता है ना, कि भाई हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होनी चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए और मिनरल्स एंड विटामिन जो ट्रेस एलिमेंट्स हम बोलते हैं वो भी होने चाहिए। तो ये थोड़ा हम अवेयर हैं कि हाँ हमारा डाइट जो है वो वेल बैलेंस होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि हमारा एक्सरसाइज प्रोग्राम भी है वो भी वेल बैलेंस होना चाहिए। क्या होता है कि certain persons are very fond of exercising and they are fond of doing cycling and swimming and running and skipping, है ना, बट देन वो वही करते रहते हैं और किसी टाइप की एक्सरसाइज नहीं करते। सर्टेन पीपल आर फॉन्ड ऑफ डूइंग योगा, सो वो स्ट्रेचिंग और योग आसन करते रहते हैं, they don't do any other thing. Certain persons go gym and they lift weights, don't think about any other type of exercise. So these are the three main type of exercise. ये आपने मैंने आपको briefly indirectly बता दिया। तो क्या होता है, there are three type of exercise. एक होती है एरोबिक एक्सरसाइज जो हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब हमारे हार्ट और लंग को कंडीशन करता है। एरोबिक एक्सरसाइज उसमें आ जाता है साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, एरोबिक डांसिंग। ये जो है सारी जो हमारे हार्ट और लंग्स को जो है कंडीशन करता है, उसको वो सिस्टम को फिट बनाने में ज्यादा हेल्प करता है। एवरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज हैव इफेक्ट ऑन ऑल द सिस्टम, बट मेनली ये जो एरोबिक है वो हमारे हार्ट्स और लंग के लिए अच्छी है। दूसरा होता है जिम में हम जाएंगे तो वेट्स उठाएंगे, बॉडी बिल्डिंग करेंगे, तो दैट डेवलप्स अवर मसल्स। वो हमारे मसल बल्क को बढ़ाता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, हमारी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। तो ये हो गया सेकंड टाइप। थर्ड टाइप जो है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आप जो है स्ट्रेचिंग आ गए, आसन आ गए। तो ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो उस टाइप की, जो तीन जो अलग अलग मैंने प्रकार बताए, तो वन शुड हैव ऑल दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इन their daily routine exercise regime. If you don't have that much time to spare in your routine, and if you have only 20 minutes in a day for your exercise routine, so I suggest कि आप क्या करो कि हफ्ते में आप एक दिन एक्सरसाइज चलो नहीं करते हो, आप संडे को देर से उठते हो, आप नहीं टाइम रहता है, तो आप 5 या 6 दिन जो है आप एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें 2 दिन क्या करो आप, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो 2 दिन आप एरोबिक टाइप ऑफ एक्सरसाइज करो, 2 दिन आप वेट लिफ्टिंग वगैरह कर लो, 2 दिन आप आसन कर लो। तो इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति एटलीस्ट 20 मिनट दिन में निकाल सकता है, और निकाल ही सकता है, और मैं कहूँ निकालना ही चाहिए टू अवॉइड सर्टेन प्रॉब्लम्स। इस प्रकार से आप भले ही 15-20 मिनट अपने बॉडी के लिए निकाल रहे हो, तो आपकी एक्सरसाइज जो है इस तरह से आप चूज कर सकते हो, एक्सरसाइज प्रोग्राम ऐसा बना सकते हो कि आपका एक्सरसाइज प्रोग्राम जो है वेल बैलेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम है, और उसमें फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको काफी ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करने में आपकी बॉडी के हिसाब से कि आपका फिटनेस लेवल क्या है, तो आपको कौन सी टाइप की एक्सरसाइज की ज्यादा जरूरत है, स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है या एंड्योरेंस बढ़ाने की जरूरत है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट आपको असेस करके ऐसे भी गाइड कर सकता है कि विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज योर बॉडी नीड्स। ऐसी कौन सी सिंपल हैबिट्स है जो कॉमन फिजिकल एक्टिविटीज को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से? ऐसी कोई सिंपल हैबिट्स वो बोल सकते हैं, जैसे पोस्चर उनका परफेक्ट स्टेट होना चाहिए, समथिंग। हम जब पेशेंट को देखते हैं ना, खास करके लो बैक पेन के पेशेंट हैं, नेक पेन के हैं, तो मेनली तो हैबिट में तो ध्यान देना चाहिए कि पोस्चर जो है वो समझना चाहिए कि व्हाट आर द राइट पोस्चर्स, कैसे बैठना होता है। तो ये जो है बैठना, क्योंकि हम मोस्टली क्या होता है कि जब हम सुबह जागते हैं तब से लेके दिन में रात को सोएंगे तब तक हमारा ज्यादातर टाइम बैठने में ही जाता है, कोई भी पर्सन हो। हाँ, किसी किसी की जॉब ऐसी होगी कि जिसको ज्यादा घंटे खड़े रहना पड़ता होगा, तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि आजकल सिटिंग जॉब ज्यादा हो गई है, तो बैठने के पोस्चर्स जो है वो हमको खास देखने चाहिए। तो मैं अभी सिंपली जैसे आपको बता दूं कि आप कहीं भी बैठे हुए हो तो आपकी जो भी सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे आप कार में बैठे हो, चाहे घर में सोफा पे बैठे हो, ऑफिस चेयर पे बैठे हो, आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसका जो एंगल बनता है ना, तो आपके जो बट्स हैं, आपका हिप जो है वो पूरा आप जो है वो वहाँ एंगल तक ले जाए।
आप अगर आगे बैठे हैं, पीछे जगह, then you get हाँ। slouch, so जो normal curvature of your spine gets reversed, and if it is maintained for hours together, such posture, this is not desirable. So one should sit getting back to the angle of the sitting arrangement. So automatically this will correct your sitting position. And the second one I say कि what happens nowadays, many people work on laptop and desktop. So क्या होता है कि हाथ हमारे जो है वो आगे बिजी रहते हैं, तो उसके साथ हमारे शोल्डर्स जो हैं वो आगे ड्रैग ऐसे प्रोट्रैक्ट कर जाते हैं, और यही पोजीशन जो है घंटों तक अगर रहती है तो नेक और ये शोल्डर और अपर बैक जो पेन है या प्रॉब्लम है उसको जो है वो बढ़ावा देता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि जो डेस्क है उसका सिटिंग अरेंजमेंट should be nearer to the desk. That should not be too far so that he needs to extend their hand fully. And जो arms वगैरह हैं हमारे forearm और elbow, they should be supported with the arm of chair or something. So your shoulder will get offloaded and the chair should be nearer to the desk. अवेयर रहना चाहिए ऐसे लोगों को कि postures जो है वो दिन में बार बार थोड़ा खुद का जो है वो असेस करते रहें, चेक करते रहें और करेक्ट करते रहें। तो ऐसे सब जो है सिटिंग जॉब वाले, उनको भी जो है ये समस्याएं बहुत कम होगी या नहीं होगी। और दूसरा जो हाउस होल्ड वर्क करते हैं तो उसमें क्या होता है कि मेनली लिफ्टिंग टेक्निक्स जो है वो हमारी गलत रहती है। हम सीधा कमर से ही झुक जाते हैं लेने के लिए, और फिर क्या होता है कि बकेट है या कुछ भी बर्तन उठाया, जैसे हाउस होल्ड वर्क करते रहते हैं तो वजन उठाना होता ही है और दिन में न जाने कितनी बार झुकना पड़ता होगा। तो ऐसे वक्त क्या करना है, हमें जो है हमारी टमी को टक करके थोड़ा स्पाइन को स्ट्रेट रख के हमको हिप और नी से भी बैंड होना चाहिए, तो हमारी स्पाइन जो है वो जो रिपीटेडली अब्यूज नहीं हो, तो हम जो है ये डिस्क इंजरीज वगैरह उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आई हैव वन मोर डाउट, जैसे आपने बोला कि अपन ने डिस्कस किया था ना कि डेस्क जॉब्स के लिए लोग कंटिन्यूस बैठते हैं, सो ऐसा सिमिलर लोगों के लिए जो खड़े रहते होंगे लॉन्ग टाइम तक, उनके लिए भी तो कोई इश्यूज होंगे? बिल्कुल, काफी ऐसे इश्यूज होते हैं जो प्रॉब्लम स्टैंडिंग से भी होते हैं। मैं जैसे मैंने बताया नहीं, मैंने खाली सिटिंग, आप अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने ऐसे बोला है कि ह्यूमन बॉडी इज नॉट मीन टू रिमेन इन सर्टेन सिंगल पोजीशन फॉर अ लॉन्ग। तो वो चाहे खड़े रहना हो, चाहे बैठना हो, चाहे लेटना हो। आप देखो, आप जैसे आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, वो हॉस्पिटलाइज है दिनों तक, उसको लेटे ही रहना पड़ा होगा उसकी बीमारी के कारण, तो क्या हुआ होगा आप इमेजिन कर सकते हो ना, हिज और हर मसल हैव गॉट वेस्टेड, स्टिफनेस भी आ गई होगी। तो घंटों तक सोते रहना, दिनों तक सोते रहना, वो उसमें कोई मेहनत नहीं है, उसमें कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा है। आवर बॉडी, टोटल बॉडी इज ऑफलोडेड, बट देयर आर नो मूवमेंट्स, बॉडी इज इन अ स्टैटिक पोस्चर, सिंगल, दैट इज हार्मफुल। एनी सिंगल पोस्चर, एनी सिंगल पोजीशन मेंटेन फॉर आवर्स टुगेदर इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, वो चाहे सिटिंग हो या स्टैंडिंग हो। तो स्टैंडिंग होने से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी है इज लोडेड फॉर आवर्स टुगेदर। तो मेनली ऐसे लोगों को क्या होता है कि हिप जॉइंट्स, इवन बैक, नीज, फीट, तो ऐसे जो है जॉइंट्स वो स्ट्रेन होते रहते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारा हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट पंप्स द ब्लड, एवरीबॉडी नोज। तो हमारा हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, वो सारे शरीर के कोने कोने तक, एक एक सेल्स तक पहुंचाता है, ठीक है। वो रिटर्न कैसे आता है ब्लड, बराबर? रिटर्न आने के लिए क्या होता है, वेसल्स होती है हमारी, वेन्स, लेकिन उसको पंप कौन करता है? तो वो जो है वो हमारी मूवमेंट्स है, वो मसल्स हैं जो पंप करती है ना। तो हम जब खड़े रहते हैं तो क्या होता है कि ब्लड जो है नीचे तो पंप करता है, हार्ट नीचे जाता है, वो रिटर्न भी होता है, लेकिन जो बंदा घंटों तक खड़े रहता है तो उसका जो वापस ब्लड जो रिटर्न होता है ना, उसका पंपिंग भी अफेक्ट होता है। मसल, क्योंकि वो खड़ा रहता है, उसके मसल्स इतने वर्क नहीं करते हैं,
तो वो पंपिंग इफेक्ट होता है, तो स्टैग्नेंट ब्लड फ्लो थोड़ा सा जो है वो रिटर्न जो है वो विनस रिटर्न जिसको हम बोलते हैं वो स्लो डाउन होती है। और ऐसा दिन सालों तक अगर कोई उसके ऑक्यूपेशन के कारण रहता है तो उसको आपने सुना होगा वेरिकोज वेन करके प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उसके सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत लंबा समय खड़े रहने से होते हैं। बैक पेन है, पेन तो है ही है, पर जैसे मैंने वेरिकोज वेन बताया, ऐसे प्रॉब्लम्स भी लंबे समय खड़े रहने से हो सकते हैं। फिजियोथेरेपी हेल्प करता है, जैसे अपन को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है तो उसको मैनेज करने में फिजियोथेरेपी हेल्प कर सकता है अपन? बिल्कुल। क्या होता है कि स्पेसिफिकली आपने डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वगैरह बताया, तो मेनली आज आपने देखा होगा वो डायबिटीज है, वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, बराबर। वो इंसुलिन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज। तो एक वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, दूसरा एक जो है वो नॉर्मली हाँ, मेडिसिन से हो सकता हाँ। है। तो ये क्या होता है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज ऐसे होते हैं। तो इसमें मेनली डायबिटीज इज अ बैलेंसिंग गेम। हमको शुगर जो है वो मेंटेन करना। डायबिटीज में क्या होता है कि शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, तो आप डाइट भी आपको देखना पड़ेगा, बराबर। जैसे मैं खाली आपको एक कल्पना दूं ना, तो डायबिटीज जो है वो एक चार पाई जैसा है, खटिया की चार पाई होती है ना, तो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए चार पाई है ना। तो आपको मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी, डाइट भी जो है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, एक्सरसाइजेज भी जो है वो करनी पड़ेगी, और दूसरा है मॉनिटरिंग, चौथा है। तो ये चार पाई है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। तो फिजियोथेरेपी और यू से एक्सरसाइज are one part of managing the diabetes. हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन भी क्या है कि स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाती है, तो एक प्रकार से है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी होता है, जैसे किसी के माता पिता को या उनके दादा को या सबको है, तो जीन्स वो है, तो थोड़ा उनको वो प्रीडिस्पोजिशन रहता है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको पिताजी को था तो उसके बेटे को हाइपरटेंशन होगा ही होगा। इफ ही मैनेजेस हिज लाइफस्टाइल वेल, तो वो नहीं भी हो सकता है। तो उसके लिए भी उसको डाइट, एक्सरसाइजेज, जैसे ये मैंने एरोबिक एक्सरसाइज वगैरह बताया, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये सब प्रैक्टिस करें। तो ऐसी चीजों में बहुत हेल्पफुल हो सकता है एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी। कभी कभी स्ट्रेस की वजह से भी जॉइंट्स में पेन होता है ना? स्ट्रेस मतलब ऐसी चीज है जो भी प्रॉब्लम आप, वो चाहे साइकोलॉजिकल हो या फिजिकल हो, उसको बढ़ावा देती है। अब वो जॉइंट पेन भी हो सकता है, या और भी, जैसे आप डायबिटीज जो है, तो कई बार हम ऐसे पेशेंट देखते हैं कि टेकिंग मेडिसिन रेगुलरली, दे आर फॉलोइंग द डाइट चार्ट्स ऑल्सो, बट देन ऑल्सो दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर शुगर लेवल्स वेल। तो ऐसे पेशेंट्स में हमने कई सारे पेशेंट्स में देखा भी है कि उनका अगर स्ट्रेस मैनेज किया जाए, उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी ऑर्गेनाइज बने, वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस करें, बहुत हेल्प करता है उनको ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने में। तो स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर, आई थिंक। तो वो ये चीजें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। स्ट्रेस, जो भी डिसऑर्डर या जो डिसीज या वो होगा, उसको स्ट्रेस एग्रेवेट तो कर ही देगा। आप जैसे एक्सरसाइज की बात करते हो अभी फिलहाल, सो हाउ इज फिजियोथेरेपी डिफरेंट फ्रॉम एक्सरसाइज? मतलब रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी सेम है या यू डिफाइन इट डिफरेंटली? जैसे मैंने कहा कि फिजियोथेरेपी का मेन पार्ट है वो एक्सरसाइज है, राइट। है ना? और मैंने एक वर्ड यूज किया था थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज। तो थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज के आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज है, बराबर। आप ये बाइसेप्स कर रहे हो, तो आप खुद बाइसेप्स करोगे और मैं बाइसेप्स कराऊंगा, आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। बट थेरेप्यूटिकली अगर मैं सोचूंगा तो क्या है कि आप किस लिए आप बाइसेप्स कर रहे हो? आपको बाइसेप्स की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको बल्क बढ़ाना है, बराबर। तो आप ऐसे कर रहे हो। अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा उस चीज को, तो कैसे देखेगा कि आपकी स्ट्रेंथ अभी क्या है, आपके बाइसेप्स कितना वेट ले सकते हैं। तो वो जिम ट्रेनर भी आपको गाइड करते होंगे बोले कि आप इतने वेट से इतने रिपीटेशन के लिए करो। तो उस तरह से जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो वैल्यू एडिशन है एक्सरसाइज में। दूसरा कि फिजियोथेरेपी, हाउ physiotherapy is different from the regular exercise, you asked. Okay, so a person is a fitness freak, और वो एक्सरसाइज करना चाहता है, तो ये करता रहता है, वो करता रहता है। कई बार क्या होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे बैक एक ही है या नेक पेन है, शोल्डर पेन है, लेकिन वो एक्सरसाइज करता रहता है उस प्रॉब्लम के साथ,
तो कई बार क्या होता है कि कोई कोई मूवमेंट और एक्सरसाइजेज उस पर्सन के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। जैसे बैक एक के काफी सारे रीजन है, उसमें कोई एक आध कोर्स जो होता है उसमें एक्सटेंशन नहीं करना होता है। एक्सटेंशन मतलब पीछे मुड़ने वाली एक्सरसाइज। तो अगर उस पर्सन को पता नहीं है और वो धनुरासन करेगा और भुजंगासन करेगा जो उसके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो इट मे हार्म हिम, उसकी कंडीशन को वर्सन कर सकता है। तो यहाँ जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट का रोल आता है। तो यहाँ जो रेगुलर एक्सरसाइज से हाउ फिजियोथेरेपी इज डिफरेंट, तो फिजियोथेरेपिस्ट बता सकता है कि भाई आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। एंड नहीं करनी है ऐसा नहीं, इसके बदले आप उसी मसल को कैसे ट्रेन कर सकते हो उसका ऑप्शन दिखा सकता है। Right. तो फिजियोथेरेपिस्ट हैव सच काइंड ऑफ knowledge. Physiotherapist has such level of knowledge that आपको क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी आपको उस मसल को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा। यू कांट लीव दैट मसल विदाउट एक्सरसाइजिंग। तो उसको जो आपको हार्मफुल नहीं हो ऐसे तरीके से उसको कैसे बिल्डअप करना है वो एक फिजियोथेरापिस्ट ही बता सकता है। फिजियोथेरेपी कैसे सपोर्ट करता है अपनी जो पोस्ट सर्जरीज हो जाती है उसके बाद वो रिकवरी तो करनी है obviously। सर्जरी के बाद हाँ, ओके। तो उसके बाद वो कैसे हेल्प करेगा अपन को? फिजियोथेरेपिस्ट के बगैर चारा ही नहीं है। स्पोर्ट्स इंजरी हुई और अगर आपने सर्जरी करनी पड़ी है, ऐसी खराब इंजरी हुई है, तो वन हैज टू डू फिजियोथेरेपी प्रॉपरली एंड देयर आर प्रोटोकॉल फॉर एवरी सर्जरी और एवरी प्रोसीजर। आजकल आपने सुना होगा कि ACL इंजरीज और ACL रिकंस्ट्रक्शन ऐसे बोलते हैं। तो एक लिगामेंट होता है नी में, वो इंजर हो जाता है, वो कई बार कंप्लीटली रप्चर भी हो जाता है और उसके कारण क्या होता है कि नी जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो जो पर्सन है वो दौड़ना भागना स्पोर्ट्स करना नहीं कर सकता है क्योंकि वो बैलेंस नहीं रहता है उसका। तो ऐसी अगर खराब इंजरी है तो जो है उसको सर्जरी करवानी ही पड़ती है। पर ऐसा भी नहीं है कि हर एक ACL इंजरी जो है वो सर्जरी करनी ही पड़ती है। विदाउट सर्जरी भी हो सकता है। हाँ, मैनेज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ द इंजरी। कुछ कुछ ऐसी इंजरी में सिर्फ फिजियोथेरेपी से ही पर्सन जो है वो रिटर्न हो सकता है स्पोर्ट्स में। Okay. लेकिन वो क्लिनिकली हमको जज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि पर्सन नीड्स सर्जरी और नॉट, और ये रिकवर विद फिजियोथेरेपी ओनली। Okay. अगर सर्जरी करनी भी पड़ी तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी के बिना रिटर्न टू स्पोर्ट्स पॉसिबल Possible. नहीं है, या वो बहुत ही लंबा समय हो जाएगा। और अगर फिजियोथेरेपी की प्रॉपर फिजियोथेरेपी किए बिना अगर वो रिटर्न हो भी गया स्पोर्ट्स पे, तो जैसे मैंने आगे बताया था कि रिकरेंसेस ऑफ इंजरी इज वेरी कॉमन, इज वेरी कॉमन। और अगर कोई पर्सन सर्जरी के बाद wants his 100% performance, then there is no option without physiotherapy. जैसे कभी कभी सुना है कि नी में होता है अपन को पेन होता है तो कोई सर्जरी कराता है, कोई फिजियोथेरेपी से ही वो उसको हो सकता है, मैनेजेबल है। तो आफ्टर सर्टेन एज 50 के बाद ये प्रॉब्लम्स आती है ना। जो आप, मैं समझा हूँ आपका क्वेश्चन से, वो आप जो है वो नी रिप्लेसमेंट की शायद बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि नी जैसे है घुटना, वो हमारा वेर एंड टेयर जो हम बोलते हैं, घिसाव, हम कॉमन अगर भाषा में बोले तो वो जो घिसाव लगता है घुटनों में, उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। हमारे बोन्स के जो एंगल्स होते हैं, कई बार जो हमारे अलाइनमेंट होती है ना, वो कंजेनाइटली या बाद में भी जैसे कई बार डेवलप होती है कि वो एंगल्स ठीक नहीं रहते, उन लोगों को जल्दी घिसाव लग जाता है। ओबेसिटी इज वन ऑफ द फैक्टर। ओवरवेट है, ओबेस है, तो ओबेसिटी के कारण भी जो है अल्टीमेटली जो लोड जो है नी पे पड़ता रहता है, हमारे लोअर लिम्स की जॉइंट, तो जल्दी घिसते हैं। उसमें भी अगर कोई पर्सन टाइम पे जाग जाता है और ज्यादा घिसाव लगा है, वेरेंटर ज्यादा है, उससे पहले वो वेट कंट्रोल कर लेता है और एक्सरसाइज करके उसके नी के मसल्स को स्ट्रेंथन कर लेता है और मेंटेन करता है, फिर बाद में तो सर्जरी की जरूरत नहीं भी पड़ती है, लेकिन दैट इज इन अर्ली स्टेज। फिर एक हद तक आपका जॉइंट जो है वो घिसाव लग चुका है, वेरेंटर एक ऐसे लेवल तक पहुंचा है जो बाद में वो पेन रिलीफ इतना नहीं कर सकता है, या हाँ और फिर पेशेंट को डेली एक्टिविटीज जो है, रूटीन एक्टिविटीज, उसमें तकलीफ होती रहती है, क्रिपल्ड हो जाता है कि भाई थोड़ा सा भी घर में मूव करना है तो भी नहीं होता है, गेटिंग अप फ्रॉम द बेड इज पेनफुल, इट्स नॉट नॉर्मल, आप थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ता है, फिर आप थोड़े कुछ कदम, ऐसी अगर कंडीशन हो जाती है तो देन वन हैव टू गो फॉर द रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट के बाद भी वो है ना, मतलब उनको बिल्कुल
क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी करना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एक हद तक खराब जो है वो कंडीशन हो जाती है, तो क्या होता है कि यूजुअली ऐसा होता है कि पेशेंट जो है वो सर्जरी अवॉइड करना चाहता है। हम्म, तो क्या होता है कि लोग खींचते रहते हैं, कई बार खराब हो गया फिर भी ऐसा होता है कि नहीं करवानी, जितना चल जाए उतना चला लेते हैं फिर। तो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में वो नॉर्मली मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनके मसल्स क्या होते हैं कि वीक 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 होते जाते रहते हैं, okay, बराबर। तो उनके जो जॉइंट के आसपास के टिश्यूज जो है ना वो भी Okay. थोड़ा उसके जो है वो टाइट हो जाते हैं, वो नॉर्मल एक्सटेंड तक वो स्ट्रेच नहीं होते क्योंकि मोबिलिटी नॉर्मल हो जाती है। कोई भी सर्जरीज कराने के पहले भी फिजियोथेरेपी की नीड होती है, राइट? तो स्पेशली आई एम आस्किंग अबाउट नी रिप्लेसमेंट, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन ब्रीफली कर सकते हो? हमने बात की कि नी रिप्लेसमेंट के बाद भी फिजियोथेरेपी की जरूरत रहती है, तो बाद में तो करनी ही पड़ती है उसके पहले फिजियोथेरेपी। की लेकिन जैसे आपने पूछा कि प्रायर टू सर्जरी भी फिजियोथेरेपी होती है क्या, तो ये बहुत ही एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। प्लांट सर्जरीज स्पेसिफिकली, सर्जरी प्लांट जैसे नी रिप्लेसमेंट में प्लांट सर्जरी है, आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे आज करवानी है, 4 महीने बाद करनी है या 15 दिन बाद करनी है। दीज आर द प्लांट सर्जरीज। तो ऐसी जब प्लांट सर्जरीज होती है तो उसके पहले मतलब प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी हम कहते हैं। तो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्यों करनी चाहिए प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी? जैसे नी रिप्लेसमेंट की ही हम एग्जांपल ले लें। पेशेंट जो है मैंने जैसे बताया कि वो कई बार सालों तक ऐसे हम चलाते रहते हैं, अवॉइड करते रहते हैं सर्जरी को, तो हमने देखा कि वो मसल्स और उसके आसपास के लिगामेंट और सॉफ्ट टिश्यूज की जो नॉर्मल जो है कंडीशन नहीं रहती है। तो ऐसे कंडीशन में अगर सर्जरी डायरेक्टली की तो क्या होता है कि मसल जो है ऑलरेडी इनहिबिटेड है। सर्जरी में जो प्रोसीजर होती है उसकी वजह से भी वो फर्दर, और उसके बाद कई बार थोड़ा जो रेस्ट करना पड़ता है, पर्सन डायरेक्टली वो नॉर्मल रूटीन अज्यूम नहीं कर लेते, उसको कुछ दिन या हफ्ते लगते हैं। तो वो उस टाइम में भी वो मसल्स जो हैं वो फर्दर वीक होते हैं। तो प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी का फायदा ये है कि आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो जो मसल्स अफेक्ट होने वाले हैं, जो जॉइंट अफेक्ट होने वाले हैं, उसको पहले फिजियोथेरेपी करके जितना भी पोटेंशियल है आपके प्रेजेंट कंडीशन में उसमें आप रिकवर कर लो। तो आपके मसल्स को आप थोड़े स्ट्रेंथन कर लो, आपकी जो जॉइंट की मूवमेंट्स जो रिस्ट्रिक्टेड है उसको फ्री कर लो, उसको मोबिलाइज कर लो। तो क्या होगा कि जैसे आपके पेन के कारण मसल इनहिबिट हो गए हैं, जो वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करते, तो फिजियोथेरेपी से हम उसको जो है वो जितना हो सके उतना रिकवर करने की कोशिश करें। तो उससे क्या होता है कि जो पोस्ट सर्जरी हमको जो एक्सरसाइजेस करनी होती है उसमें कई बार क्या होता है कि हम पेशेंट को एक्सरसाइज करवाते हैं ना, तो मसल्स वो कोशिश करते हैं लेकिन वो मसल एक्ट ही नहीं करते हैं, ऐसी कंडीशन आ जाती है पेन के कारण। तो ये कंडीशन को अवॉइड करने के लिए प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि प्री ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी जो करते हैं पेशेंट, उसकी पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी जो है वो काफी इजी और फास्ट हो जाती है। तो एक नी रिप्लेसमेंट में जस्ट प्लांट सर्जरीज, आप नी रिप्लेसमेंट ले लो या स्पोर्ट्स इंजरीज जैसे हमने पहले बात की कि कोई लिगामेंट इंजरी है, आपको सर्जरी आपको करवानी पड़े ऐसी कंडीशन है, तो उसमें भी हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप सर्जरी करने से पहले एटलीस्ट सेवरल डेज टू फ्यू वीक एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी करिए और फिर सर्जरी के लिए जाइए। तो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी पैटर्न है या रिकवरी का जो पीरियड है वो easy will हो get जाता shorter also. Okay. It get easier and shorter also. So preoperative physiotherapy is quite important and one should go for the preoperative physiotherapy. It's planned surgery is there. So when you're talking about this, मुझे सिर्फ ये पूछना था, जैसे ये तो लॉन्ग टर्म रिकवरीज रहती है इसमें, ठीक है, सो हाउ डू यू कीप पेशेंट्स मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस? Okay. ये भी एक हमारी प्रैक्टिस में कई बार समस्या रहती है कि सर्जरीज हैं तो सर्जरी की हुई होती है तो पेशेंट एक तरह से थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, रिटर्न होना है नॉर्मल लेवल तक, बराबर। तो थोड़ा मोटिवेट होता है। फिर भी कई बार क्या होता है कि हर 2 पेशेंट या कोई भी 2 पेशेंट सेम नहीं होते हैं। जैसे नी रिप्लेसमेंट की बात कर लो या स्पोर्ट्स इंजरी के बाद आप बात कर लो, तो नी रिप्लेसमेंट में एक पेशेंट है वो उसकी मूवमेंट्स जल्दी रिकवर हो जाती है। कई बार क्या होता है कि सर्जरी के 1-2 हफ्ते 15 दिन में ही काफी रेंज आ जाती है और किसी किसी को कुछ 2 महीने तक भी
जो डिजायर्ड लेवल ऑफ मोशन जो है, रेंज ऑफ मोशन, वो नहीं आ पाती है. देयर आर सेवरल रीजन फॉर दिस. तो ऐसे केसेस में ऐसा जब रिकवरी प्रोलॉन्ग हो जाती है, तब कई बार पेशेंट में फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, वो थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं. तो हम यूजुअली उनको क्या देते हैं, एक शॉर्ट टर्म गोल देते हैं. अगर पेशेंट को पता है कि रिकवरी पीरियड उसका लंबा है, वो सेवरल मंथ्स हैं, तो उनको एक टारगेट देना पड़ता है. उसको एक शॉर्ट टर्म गोल हम बताते हैं कि आपकी फिलहाल जो है वो रेंज ये है. सपोज उनका घुटना अभी 70 डिग्री मुड़ रहा है, लेकिन हम जज कर सकते हैं कि ये 70 से 90 डिग्री जो है कितने दिन में प्रोग्रेस हो सकता है उसकी कंडीशन के साथ. तो हम वो देखते हैं. अगर वो रिकवर हो जाता है तो हम उनको वो बताते हैं. देखो, हम रिकॉर्ड भी रखते हैं. बोलते हैं कि देखो, ये 15 दिन पहले इतना मुड़ रहा था, आज इतना मुड़ रहा है, तो 15 दिन में देखो कितना चेंज आ गया है. तो दे गेट मोटिवेटेड कि नहीं, हाँ, ये हमारी रिकवरी तो चालू हुई है. कई बार पेशेंट क्या होता है कि अल्टीमेट गोल को सामने रखता है, तब जाके उनको रिकवरी बहुत स्लो लगती है. जैसे पेशेंट नी रिप्लेसमेंट का पेशेंट होगा, वो एक्सपेक्ट करता है. कई बार ये सर्जन्स जो हैं वो कई बार इंफॉर्मेशन कई बार देते हैं कि आप बस ये सर्जरी के 15 दिन बाद तो आप एकदम अच्छा चलने लग जाओगे. तो कई बार ये एक्सपेक्टेशन बढ़ जाते हैं पेशेंट के. तो यूं होता नहीं है. नी रिप्लेसमेंट के बाद यूजुअली 2 to 3 months तो मिनिमम आपको करनी पड़ती है फिजियोथेरेपी, मिनिमम. बाद में आप और जो है, अगर आप फिटनेस फ्रिक हैं और एक्सरसाइजिंग पर्सन है, तो उस लेवल तक पहुंचने में आपको और टाइम हाँ, चाहिए. चाहिए होगा. तो ये सब बातें जो हैं हम पहले भी उनको क्लियर कर देते हैं, और बाद में भी जो शॉर्ट टर्म गोल देके उनको जो है उनका मोटिवेशन हाई रखने का जो है प्रयास करते हैं. और दूसरा कि ये मंच से भी ये भी बताना चाहता हूँ, ये नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है ना, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को रिकवर करने में जैसे जैसे टाइम लगता है, 2-3 महीने मैंने बताया, उससे भी ज्यादा लग सकता है. लेकिन पेशेंट भूल जाए, उसके दिमाग से ये बात ही निकल जाए कि मेरा ये जो है ना रिप्लेसमेंट करवाया, ऐसा लेवल आते आते यूजुअली 1-1.5 साल लगता है कि पेशेंट भूल ही जाए कि मैंने रिप्लेसमेंट करवाया हुआ है. उतना वो, क्योंकि अल्टीमेटली दैट इज अ फॉरेन बॉडी, सो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. और दूसरा कि उस लेवल तक की फिटनेस और उतना नॉर्मल रूटीन जो है वो लेने में, और सेंस ऑफ फॉरेन बॉडी बीइंग इनसाइड अ बॉडी, वो सेंस हटने में कहीं यूजुअली इतना टाइम लगता है. पर मेरे को ऐसा है कि ये स्टेज तक लोग आने क्यों देते? जैसे साइटिका है, फ्रोजन शोल्डर है, नी रिप्लेसमेंट है, ये स्टेज तक क्यों आने देते? ऐसा कोई सिम्टम्स पता पहले से चल जाता होगा? बिल्कुल. जैसे कुछ 5 टिप्स, ऐसा कुछ टिप्स दे सकते हो कि आपको जैसे ही पेन शुरू हुआ तो वी शुड कंसल्ट देम, कि तुरंत कंसल्ट कर लोगे तो इतना नहीं प्रॉब्लम है. बिल्कुल, वो है ही. और दूसरा आपने बताया ना कि मोटिवेशन के लिए जब आपने बात की, तो मैं वो भी बताना चाहता हूँ कि सर्जरीज की हुई तो यूजुअली वो डिजायर्ड ड्यूरेशन तक फिजियोथेरेपी करते हैं. लेकिन जैसे आपने बता दिया साइटिका है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसमें कई बार समस्या रहती है कि पेशेंट क्या होता है, साइटिका है या कुछ भी है, पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों जाता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास? सबसे पहली इंडिकेशन क्या होती है ऐसी कंडीशन में कि पेन, दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाएगा. दर्द भी होता होगा ना, तो कई बार चलो आज दुख रहा है, वो तो किसी जब स्टार्ट हुआ होगा तो क्या सोचता है कि 1-2 दिन में हो जाएगा. तो कई बार काफी सारी कंडीशन ऐसी होती है कि रेस्ट से अपने आप थोड़ा पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है. लेकिन अगर पेन इज रिकरेंट, आपको आए दिन वो पेन वो जो वापस आ जाता है, देन यू शुड गेट अलार्म. तब आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए. और क्या होता है कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएंगे या कोई भी फिजिशियन के पास जाएंगे, तो फिजिशियन जो है पेन के लिए तो क्या करेगा, आपको एनाल्जेसिक देगा. ठीक है, वो कुछ आपको जरूरत होगी तो वो लेनी भी पड़ेगी. और होता क्या है कि ये मस्कुलोस्केलेटल पेन, जो मसल्स और बोन्स के पेन, जो यूजुअली हमारे रूटीन, जैसे हमने पहले भी देखा कि फॉल्टी पोस्चर्स या गलत हमारी एक्टिविटी से के कारण होते हैं, तो ये उसको प्रॉपरली ठीक करने का जो एक माध्यम है वो है कि आप तो जो जिस वजह से हुआ है उसको समझो पहले. हाँ, एग्जैक्टली. हाँ, तो वो कौन असेस करेगा? खुद बेस्ट. एक तो खुद करोगे. अगर हर लोग कोई अवर नहीं होता है इतना, जैसे आपने बोला कि खुद देख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खुद को समझ में नहीं आता है कि कहाँ गलती हो गई. तो वहां पे क्या है कि जैसे फिजियोथेरेपिस्ट इज अ मूवमेंट स्पेशलिस्ट,
बराबर। तो वो पेशेंट को असेस करता है, वो उसके पोस्चर्स को ऑब्जर्व करता है, वो उसको पूछता है, हिस्ट्री भी लेता है। हाँ तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो पकड़ सकता है कि कहाँ गलतियां हो रही है, देन ही कैन गाइड। एग्जैक्टली वो बता सकता है वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, वो बता सकता है। हाउ कैन यू मॉडिफाई योर टेक्निक्स, योर पोस्चर्स, वो बताता है। तो ये सब अडॉप्ट करना पड़ता है। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि जो रिकरेंट प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए और दूसरा कि जब पेन रिलीव हो जाता है ना, चाहे वो मेडिसिन से हुआ चाहे फिजियोथेरेपी से हुआ, तो पेशेंट भूल जाते हैं कि बस अब ठीक हो गया ना। पर लेकिन कई सारी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि आप जस्ट पेन गायब हो जाए तो उसको ऐसा मत समझ लो कि यू आर क्योर्ड। अगर आपके मसल्स वीक हैं, उसकी वजह से ये हुआ है, तो जब तक आप मसल्स की स्ट्रेंथ को एक लेवल तक नहीं पहुंचाओगे, अगर वो गलत पोस्चर से हुआ है तो जब तक आप अपने पोस्चर्स नहीं सुधारोगे, अगर वो गलत टेक्निक्स, लिफ्टिंग टेक्निक्स और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में जो हम टेक्निक्स यूज करते हैं वो फॉल्टी टेक्निक्स के कारण हुआ है, तो जब तक आप ये टेक्निक्स नहीं सुधार रहे हो तब तक आप परमानेंटली क्योर नहीं हो सकते। तो ये तीनों बात ध्यान रखनी पड़ती है, एक तो अपनी फिटनेस, दूसरे पोस्चर्स एंड टेक्निक्स। तो ये अगर इनमें कहीं दोष है और वो आप नहीं सुधार रहे हो तो रिकरेंस होना ही है। तो ये अवेयरनेस लाने की जरूरत है। और फिर वो स्ट्रेंथ बढ़ाने में, नॉर्मल लेवल में लाने में आपको चाहे कुछ हफ्ते लगे या चाहे कुछ महीने, वो करना जरूरी है। इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर पेन ठीक हो गया और छोड़ देते हो, देन यू आर ए ड्रॉप आउट। तो वो नहीं होना चाहिए। ओके, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? क्योंकि मतलब ऐसा हो सकता है कि हमने शायद कुछ मिस कर दिया हो। वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट कि हम लोग नहीं सब नहीं, कुछ cover आपने करें। बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। मोस्टली तो काफी कुछ हमने कवर कर ही लिया है, लेकिन मैं जस्ट एक जनरल, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, मैं एक जनरल सोसाइटी को मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आज हम देख रहे हैं, पहले क्या होता है, जैसे जैसे मैं छोटा था, तो आई एम 48 नाउ। सो मैं जब छोटा था, 30-35 साल पहले की अगर बात करूं, तो क्या था, हम गली में खेलते थे, दौड़ भाग करते थे। तो आज जो है बच्चों का वो बाहर खेलना कम हो गया है। वो हम बड़ों की बातें करते हैं कि आज सिटिंग जॉब हो गई, ये हो गई, लेकिन आप आज स्कूल गोइंग एक बच्चा देखेंगे तो उसके भी काफी सारे अवर स्कूल और ट्यूशंस में 6 घंटे अगर स्कूल जाता है, 3 घंटे ट्यूशन जाता है, तो दिन के 12 में से 9 घंटे तो उसके बैठने में ही चले गए हैं। बाकी घर आके टीवी देखेगा या मोबाइल बैठ के गेम पकड़ के ले जाएगा। तो सोचो कि उसके भी सिटिंग्स कितना बढ़ गई है। चाइल्डहुड ओबेसिटी इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ। तो मैं तो कहूंगा कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करो, उसको प्रमोट करो, उसको मोटिवेट करो कि वो टीवी मोबाइल पकड़ के ना बैठे, बाहर खेले। और खाना पीना भी हमको ध्यान देना ही चाहिए। हम बाहर का खाना इतना हो गया है, हम हाई कैलोरी डाइट्स लेते रहते हैं, तो बच्चों में भी ये ध्यान देना चाहिए। बड़ों के लिए भी अवेयर होते ही हैं, पर फिर भी जैसे आपने पहले पूछा था कि अगर किसी पर्सन का जॉब ही ऐसा है कि उसको बैठना पड़ता है, तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे पर्सन भी कुछ भी करके अपने शरीर के लिए थोड़ा टाइम तो निकाल के लेना चाहिए और एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। तो ये बातें हैं। और दूसरा, ये तीसरी जो बात जो है, हम शायद हमने ऐसा क्वेश्चन में भी बात नहीं की। मैंने पहले आपको बताया कि स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी इज फ्रॉम पीडियाट्रिक टू जीरियाट्रिक। तो एक जीरियाट्रिक मतलब ओल्ड एज पीपल। ओल्ड एज पीपल में फिजियोथेरेपी का रोल बहुत बड़ा है, मेजर है। ओल्ड एज प्रॉब्लम्स जो हैं, यूजुअली क्या होता है कि वो वीक मसल्स और उसके कारण और डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वो जो ओल्ड एज में होते हैं। और उसका मेन सॉल्यूशन जो है वो फिजियोथेरेपी है, और बहुत हद तक फिजियोथेरेपी हेल्पफुल हो सकती है। तो ये अवेयरनेस भी आना चाहिए कि ओल्ड एज पीपल में ऐसा न स्वीकार करके बैठे कि अब तो मेरी उम्र हो गई, ये तो होना ही है, इसके साथ जिंदगी जानी ही है। अब ये कई बार ऐसा भी डायलॉग हम सुनते रहते हैं, अब तो ये मैं जाऊंगा तब साथ में जाएगा ये प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं होता है। काफी सारे प्रॉब्लम्स जो हैं उनको हम काफी हद तक, अच्छी हद तक मैनेज कर सकते हैं, और कुछ कुछ तो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको हम 100% क्योर भी कर सकते हैं फिजियोथेरेपी से। तो ये बात है।
और दूसरा एक मैं फिजियोथेरेपी के लिए कहना चाहूंगा कि जैसे फिजियोथेरेपी जो है ना, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जो कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकती, लेकिन उसमें हम एक लेवल तक उसको ऐसा सुधार सकते हैं कि एक पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो एक अच्छे लेवल Level तक तक। आके रहती है। तो एक हमारे प्रोफेशन में एक सेइंग गोज कि अ फिजिशियन adds day to life, but a physiotherapist adds life to days. Exactly. So this is the power of a physiotherapist. Thank you. Thank you for your wonderful insights. Okay, thank you. And आई होप सो अभी काफी सारा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगा बिल्कुल, और उनको बिल्कुल। अवेयरनेस आएगी कि हाँ, कैसे कब जाना है डॉक्टर के पास एंड बिल्कुल। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने ये सेशन के लिए मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए कि ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो जनरल पब्लिक को बहुत ही यूजफुल रहेगी। और कब क्या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपी का क्या रोल है और कब हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, ये लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से मालूम होगा। धन्यवाद। थैंक यू। thank you.